ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایک قصہ اسار رانا صاحب نے سنایا جس میں انہوں نے بتایا کہ ٹھنڈ کنوں نہیں لگتی. تو ٹھنڈ سبھی کو لگتی ہے, لیکن میں آپ کو جو قصہ بتانے لگا ہوں اس میں ٹھنڈ نہیں لگتی. میں آپ کو, یہ دلچسپ بات ہے رانا صاحب, ہم لوگ اسکول کا ٹور گیا ہوا تھا سر, گلیشیئر اسکردو ہم لوگ گئے لے کر. اس وقت میں 7th کلاس میں تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو یہ حالت تھی کہ میں نے 6 ساکس پہنی ہوئی تھیں اور پتہ نہیں کس طرح ہم نے اپنے آپ کو کور کیا تھا. ہم ایک گلیشیئر پہ چڑھے تو وہاں ایک بچہ جو ہے وہ کھڑا ہوا میں نے دیکھا تو میرے اس سردی میں بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ ننگے پاؤں تھا سر, گلیشیئر پہ کھڑا ہوا. اچھا, ہاں جی, ننگے پاؤں. اور اس نے صرف ایک ملیشیا کلر کا, جس طرح ہوتا ہے نا ایک عام کاٹن ٹائپ کا جو ایک کپڑا ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا, اور یہ اس طرح کی کوئی ویسٹ کوٹ ٹائپ چیز تھی جو اس نے اوپر لی تھی اور وہ بڑی ہلکی سی ہوگی. اور میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے مونگا. اس نے 7mm پکڑی ہوئی رائفل, وہی وہ سامنے پکڑ گیا. اس کے قد سے اونچی تھی سر رانا صاحب, وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا, آپ دیکھ لیجیے. اور وہ وہاں اس لیے تھا کہ وہ لوگ جس طرح ہم یہاں یہ نہیں ہوتا چھرے والی گنیں فائر کرتے ہیں, وہ وہاں پہ ذرا ہوتا ہے کہ ٹورسٹوں فائر کرواتے ہیں تو وہ اس کو پیسے لیتے ہیں, وہ اس طرح کا معاملہ. سر بیسکلی حالات جو ہیں وہ انسان کے اندر ایک بہت بڑی ایبلٹی جو ہے نا وہ اڈاپٹیبلٹی ہے. یہ بہت بڑی خاصیت انسان کی. آپ دیکھیے کہ اس عمر کے بچے کو, اور وہ 8 گھنٹے میں نے دیکھا اس کو کھڑے ہوئے وہاں پہ. یہ کو میں آپ کو 5, 10, 15 منٹ کی بات نہیں بتا رہا. ہمیں آج شاید میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہیومنلی پاسبل نہ شاید کوئی مانے گا نہ تسلیم. میں نے وہاں جتنی دیر ہم وہاں رہے وہ بچہ وہیں کھڑا رہا, اسی برف پہ رہا, اور اس کے پاؤں کے تلے جو تھے وہ بالکل ننگے پاؤں. ویسے نشاط صاحب میں بات کرنے کا مقصد, تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں جو رانا صاحب نے بیان کی کہ ٹھنڈ کیوں نہیں لگتی, وہ اس کا کہنے کا انداز یہ تھا, لیکن وہ کام کر رہا تھا. اسی طرح وہ بھی اپنی مجبوری کو جو ہے جو ایف آئی آر اس نے بھی کاٹ رکھی تھی, اس کی بھی ایف آئی آر موجود ہے اپنی جگہ پہ. میں ویسے اس کا ایک دوسرا جو چھوٹے بچوں پہ, وہ جو چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے نہیں ہیں, یہ دراصل یہ گھروں کے بڑے ہیں. بہت سنجیدہ گفتگو کی طرف ہم چلے گئے. ذرا عید کا موقع تھوڑا میں کہا آپ سب کو واپس لے کے آؤں کہ ٹھیک ہے پیپر کے دور کے سب دوست ہیں, رونق ہے. رانا صاحب کوئی نظم یاد کر رہے تھے آپ کے, کیا دکھ ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ؟ نہیں کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہیں؟ نہیں, وہ آپ نے مجھے پوچھا تھا نا کہ کیا غم ہے, دکھی نہیں کرنا. نہیں وہ کیا غم ہے, تو وہ کہتا ہے کہ کبھی جو پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا دکھ ہے, کبھی جو پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے, تو پھر کس بات کا غم ہے؟ اگر وہ پوچھ لیں بس وہ پوچھتے نہیں. تمہارا عکس دھندلا ہے, تمہاری یاد مدھم ہے, تمہارا غم نہیں سلامت, ہمیں اس بات کا ٹھیک ہے نا. تو لیکن اللہ کرے میری بیوی نہ دیکھ رہی ہو, نہیں تو میں پڑھ لے کے کیڑی یہ جیتے تنو غم ہے تیرا غم نہیں مکن دیا. کچھ جذبات احساسات جو ہے نا, ابھی تک تمہیں آرام نہیں آیا اس مصیبت. آپ جاتے ہیں ویسے کچن میں عید کے دن, کچھ ہوتے ہیں اسپیشل چکر لگتا ہے؟ نہیں, میرا ویسے میں آپ کو بتاؤں جانا چاہیے, لیکن میری شروع سے ہی عادت یہ ہے کہ میں کچن والے معاملات میں نہیں بالکل گیا. اور میری کچن والی والے معاملات, کچن والی کے معاملات میں سارا کچھ کچن والی پہ چھوڑا ہوا ہے. صحیح. اور سہولت بڑی اس پہ ہے. زندگی میں سکون کا بہترین راستہ. ہاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کبھی کبھی تو شوق ہونا چاہیے. وہ تو یہ ہے کہ ہم نے بندہ کہہ ہی دیتا ہے نا کہ انڈا فرائی کیا بھی خود کیا. تو چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ ساتھ آپ اگر کریں تو انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ گھر والی پہ چھوڑ دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ بڑا کافی چیزیں جو تیار ہی مل جاتی ہیں. ایک اور بات بھی ہے میں آپ کو بتاؤں, اور پھر وہ میری اور رانا صاحب کی ہماری بالکل قدر مشترک اس میں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے, جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمارا ایک پرنٹ میڈیا کا ایک سارا دور, ہم نے راتوں کی ڈیوٹیاں کی ہوئی ہیں. ایسی ہے نا, تو ساری زندگی جو ہے نا, زندگی کا ایک طویل عرصہ جو ہے نا وہ ہم اخبار کی تیاری میں, وہ نائٹ ڈیوٹی جو ہے نا. اچھا, اس میں پھر گھر والے بھی تھوڑی سی سہولت دیتے رہے. مجھے تو ملتی رہی ہے سہولت نا, ہمیں بھی ملی, ورنہ کام کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے, ورنہ بڑا مشکل ہے. اچھا, اب اسی طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم, میرے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, تو چھوٹے بھائی نے کافی ذمہ داریاں لی ہوئی کہ یہ جو قربانی وغیرہ کا کئی چیزیں جو ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں وہ پھر بھائی کے ذمہ ڈال دی. تو ہم نے تھوڑا سا مطلب یہ سمجھے عیاشی میں ٹائم گزار لیا, بچت اپنی یہ ہو گئی. تو کام ویسے گھر کے کرنے چاہیے ساتھ ساتھ. آپ تو کہہ رہے ہیں میں پوری خاتون بھی ہوں, آپ تو یہ بات نہیں ہے. میں ویسے رانا صاحب یہ ضرور بتائیے گا آپ پکاب کیا کہہ لیتے ہیں؟ وہ مطلب وہ ویلاگ کے علاوہ صرف ویلاگ پکانے والی بات نہیں کرنی, یہ باتیں پکانے کی بات نہیں کرنی, ایکچولی جو کھانے پکانے کی چیز ہے اس میں کیا میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کے کرتا ہوں, لیکن یہ کہ سارا کام نہیں,
आपके जिम्मे क्या-क्या काम है? मैं कपड़े मैं धो देता हूँ तो सुखा वो देती है, सही है, ठीक है, पानी वो गर्म करती है, बर्तन मैं धो देता हूँ। अब ये तो आप डायलॉग कर रहे हैं, वो जो एक बात है ये भी बातें बता रहे हैं, अभी भी बातें बता दी। सर हुकूमत को आप बहुत पकाते हैं, हमें नहीं पकाए, हमें सीधी बात बताएं कि आप क्या करते हैं, असल वाला। नहीं, मैं किसी दिन मौका मिला, अल्लाह ने मुझे पैसे दिए तो मैं बहुत अच्छा आपको कढ़ाई गोश्त खिला सकता हूँ अपने हाथों का बना हुआ, और आपको लगेगा कि प्रोफेशनल बना हुआ है, ठीक है ना। मुझे उसकी रेसिपी, उसका तरीक़ेकार के ये कब किस वक्त जो है इसके अंदर क्या चीज डलनी है, कैसे होना है, वो ईद के तीसरे दिन की दावत राणा साहब के घर रख लेते हैं। अच्छा, नहीं मैं आ जाता हूँ, नहीं, मुझे राणा साहब की ये बात सुन के आपकी तरफ आ जाता हूँ। राणा साहब जिस तरह आपने क्या अभी कहा कि अल्लाह ने मौका दिया, हालात ऐसे हुई हैं आप, अच्छा वो कभी किसी ताजर से जो पैसे कमाने वाला बंदा होता है ना, अभी ये तो समझेंगे ना पैसे कमा रहे हैं आजकल आप, तो उससे पूछे ना जी कारोबार कैसे चल रहा है, वो कहता है ये तो घाटा बह रहा है। अच्छा, नहीं, मेरा हाल यकीन करें वो वाले ताजिर वाला नहीं है कि क्या कहते हैं नीचे मैं बुरादा मिला रहा हूँ और ऊपर मनगश्शा फलैसा मिल रहा है, या क्या कहते हैं और मिलावट की वो हम में से नहीं है, ऊपर मनगश्शा फलैसा में ना लिखा हो और नीचे मैं मिलावट कर रहा हूँ, या क्या कहते हैं मैं नीचे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी लोग, और ऊपर मैंने इतना बड़ा करके लिखाया हो कि क्या कहते हैं कुरान की तालीमात लिखाए हो या कोई भी सबक लिखा हो दुनिया के दिखाने के लिए, और मदीना जनरल स्टोर सब नीचे यही कुछ हो रहा है, नाम ऐसे रखे हुए हमने कि भाई जी। एक्चुअली तो हमने, आई एम सॉरी टू से, कि हमने मजहब को भी अपनी कमाई का जरिया बना। अब ये बात किसी को बुरी लगे तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज हमारे जो उलमा इकराम बुरी सिर्फ उनको लगेगी जिन्होंने बना दी। हाँ बिल्कुल, हमारे उलमा उनको बुरी क्यों लगे। एक इतने बड़े मुत्तकी आलिम साहब का जब मुझे पता चला कि उनके अकाउंट में पता नहीं कितने करोड़ रुपया है, ठीक है, उनके और उनके बेटे के अकाउंट में, कराची के एक आलिम के, करोड़ों में नहीं था, वो बिलियंस में था, वो बिलियंस में ठीक है। मैंने कहा सानू तकवे ते लाए हैं, ठीक है, आप तुसी छुरी फेरन दे पूरी कौम को, तो जिस कौम के मिंबर पे बैठने वाले ज़मीर बेच चुके हो अपना, तो फिर वहां से मिंबर से हक की आवाज नहीं बुलंद होती। 25,000 रुपए लेके अगर कोई मुतमिन हो जाए मिंबर पे बैठने वाला, तो फिर उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। आई एम सॉरी, फिर बात फिर सीरियस देखे ना, आपने ईद शो को ना वो जो है ना वो उस तरफ जाने नहीं देना। सुनाए किसी बकरे ने कोई टुड मारी हो आपको, कोई बकरा भाग गया उसके पीछे भागे हो, कोई ईद का किस्सा, कोई बड़ा मजाहिया किस्सा कुछ सुनाए हम। वो बकरे ही तो पकड़ रहे हैं आज तक हलाल करने के चक्कर में। वो असल में चाहते हैं कि कोई ऐसी बात बताएं ना जिसमें बकरा जो है आपके हाथ से निकल गया हो, दुखी यादें, और बात भी वो बतानी है जो पहले ना बताई हो, हसीन यादें, ये दो कंडीशन। अच्छा, नहीं वैसे ईमानदारी की बात है, ये बात ना नौशाद साहब को भी समझ आएगी और खालिद भाई को भी आएगी। सिंदरा क्यों नहीं आई? मैं कमाकल हूं नहीं, ये वो किसी वजह से कह रहे होंगे, मैंने इसीलिए पूछ लिया। जो रीजन मैं बताऊं, जब मैं बात बताऊंगा तो समझ आएगी कि ये सिदरा के लिए नहीं थी बात। मेरी सबसे बड़ी फैंटेसी ईद पे ही होती थी कि मेरा घर था मीनार पाकिस्तान के अपोजिट साइड पे ना, क्या कहते हैं, कच्चा रागी रोड। मेरी एक फैंटेसी थी कि हम सुबह, मेरा वालिद मोहतरम, हम मेरे भाई, हम कच्छों में चादरें रखते थे और अपने बाप की उंगली पकड़ के हम बादशाह मस्जिद जाते, ठीक है ना, और बादशाह मस्जिद में जाके जो हम लेट भी ना भी होते थे, तो जो बादशाह मस्जिद के बाहर पार्क है ना, वहां पे हम चादरें बिछा, और एक कतार होती थी चादरों की लोगों की, ताहदे निगाह ना, और हम वहां पे वो ईद मेरे पूरी ये समझ लें कि पूरी लाइफ में वो लम्हा कभी वापस नहीं आ सकता। जो लम्हा हमने वहां गुजारा, अपने बाप की उंगली पकड़ के सड़क अबूर करते हुए वापसी में उसके साथ जाते हुए, फासला थोड़ा नहीं है जो कच्चा रागी रोड से बादशाह मस्जिद का फासला, अच्छा खासा फासला है। राणा साहब आपने एक अफसाना पढ़ा होगा, और एक सर एक जुमला और, हमें उस दौर में भी वीआईपी प्रोटोकॉल का सामना करना पड़ता था क्योंकि गवर्नर वही नमाज पढ़ते थे। सही, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि सब सड़कें बंद कर दी जाएं। गवर्नर के लिए थोड़ा सा वो जगह बना लेते थे जिससे वो चला जाए और आ जाए, लेकिन ये कि बढ़ती गई ना। बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ कि इट वाज द ग्रेटेस्ट मेमोरी इन माय लाइफ के जब मैं ईद को रिकॉल करता हूँ
तो मेरे लिए वो लम्हा जब मैं अपने बाप की उंगली पकड़ के जाता था और फिर वापस आता था, अब भी अगर मुझसे कोई ये कहे कि जी तुम्हें क्या चीज ईद वाले दिन चाहिए, तो वो दिन चाहिए, तो मैं उसे कहूंगा कि मुझे वो लम्हा और वो उंगली चाहिए जो मैं पकड़ सकूं आज भी। वो मैं बताने लगा था कि ये जो अभी राणा साहब बात कर रहे हैं ना, एक अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का ईद का, तो उसमें ऐसे ही एक बच्चा जो है उसके बारे में बताया कि वो गांव के बच्चे जो है वो कस्बे की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वही सीन जो है बेसिकली हम लोग उस वक्त देखा करते थे। आज जो चीज़ें मिस हो रही है ना, बेसिकली जो बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही हैं नज़र आती हैं, ये नहीं कि हम उस दौर से गुजर गए हैं तो वैसा हो नहीं रहा, लेकिन ये है कि आज बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसिंग में चली गई हैं। तो कुछ रिवायात जो हैं बच्चों को वहाँ पे रखना चाहिए, कुछ रिवायात जो है उसमें, जैसे ये कुर्बानी भी एक रिवायत भी है साथ, तो इसी तरह से ये बाप के साथ जाना, बड़ों के साथ जाना, मस्जिद तक जाना, ये तो एक बड़ा ज़िंदगी के यादगार लम्हात हैं, और इंसान उस दिन की तलाश में, फिर उस लम्हे की तलाश में फिर रहता है कि कैसा वो वक्त था। तो ये बहरहाल वो मैं तो अफसाने का जो हवाला दिया वो ये कि वो एक हिंदू एक अफसाना निकाल, उसने मुस्लिम कम्युनिटी की इस तरह से मंजर कशी की है, इतनी खूबसूरत की है। तो आज का फिर वो, लेकिन यहाँ पे कुछ आ जाएगा, सियासी बात आ जाएगी कि आज वहीं पे उसी कम्युनिटी की तरफ से देखें तो उधर से नफरत आती है। तो ये तो उनको वैसे ईद का, हम जो ईद के दूसरे दिन बैठे हैं तो ये पैगाम भी होना चाहिए कि भाई कुछ बर्दाश्त का जज्बा जो है वो पैदा करें। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं खालिद साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता। सही। जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनकी तरफ से हमें नफरत नहीं आती। सही। जो ऊपर लीडरशिप है ना, हाँ उन्होंने बना दिया, क्योंकि यही है, आई एम सॉरी टू से, दोनों जानिब की लीडरशिप, उनकी लीडरी का इन्हिसार इसमें कि ये नफरत कायम रहे। सही। अगर ये नफरत कायम ना रही तो फिर तो मोहब्बत अब ये थोड़ा सा ना, मैं भी आपकी बात का कायल था, अब क्योंकि फिर टॉपिक उधर ही चले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैंने बिहार के इलेक्शन और बंगाल के इलेक्शन में जो नतीजे देखे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ठीक है ये लीडरों का किया धरा जरूर है, लेकिन वो इतना पेनिट्रेट जरूर बल्कि मैं आपको शिद्दत पसंदी अब ये बात बहस में चली जाएगी। जब हम गुजरात और बिहार के इलेक्शन को कोड करते हैं ना, वो 8 फरवरी के इलेक्शन को कोड करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट ऑल ऑफ देम। राणा साहब ने कहा मैं आपकी बात पे इत्तेफाक नहीं करता, फौरन से पहले मेरे ज़हन में ये ख्याल आया, राणा साहब आप किसकी बात पे इत्तेफाक करते हैं, मुझे वो बताइए। कोई एक जिंदगी में शख्स, कोई एक ऐसा साथी जो भाई ये इसकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। देखें, एक शेर है कि इश्क में मर्जियां नहीं चलती, इश्क में मर्जियां नहीं चलती, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह। तो हम तो यारों के कहे पे बिस्मिल्लाह कहने वाले लोग हैं। बस वो बिस्मिल्लाह करा देने, बस बिस्मिल्लाह करा जड़ी शय उन्हां दे वास्ते बिस्मिल्लाह है, वो तो मान जाते हैं। हां, वो जो मेरे लिए बिस्मिल्लाह, बहुत सारे लोगों के लिए इन्ना लिल्लाह है, ठीक है ना। आप बता रहे थे, आप जो ये जो ठीक है, मतलब ये जो उन्होंने अफसाना लिखा ये अपनी जगह है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे यादगार लम्हात ईद से जुड़े ज़रूर होंगे जिनको आप समझते होंगे कि ये अब मिसिंग भी हैं और ये है जो एक्चुअल आज भी होना चाहिए। नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जी कि मैं तो हर ईद को, मुझे कभी किसी दोस्त ने, आज तक मुझे पूरी ईमानदारी से याद है कि किसी भी ईद पे किसी दोस्त ने पूछा ना कि आपकी ईद कैसी गुजरी, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी गुजरी, और अल्लाह का शुक्र ये और हकीकत कि हर नहीं वाकईतन ऐसी है कि हर ईद बड़ी अच्छी। इसकी वजह क्या है ना कि ईद का वो जो दिन है ना राणा साहब, असल में आपने अपना प्लेयर तलाश करना होता है कहाँ पे करना है। ये कोई आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत पैसा दौलत खर्च करनी है। दौलत जिसके पास नहीं, कोई 90% 98% तो क्लास हुआ है जिसके पास है ही नहीं, तो 2% है जो अशराफिया है जिनके पास है। तो दौलत आप तलाश ना करें, खुशियाँ तलाश कर लें। तो खुशी आपको सबसे ज़्यादा मिलती है या अपने बड़ों से मिलके या अपने बच्चों से मिलके। अब एज की हम उस स्टेज पर हैं जहाँ पे बड़े जो हैं वो कहीं कहीं नजर आते हैं। नहीं, हम खुद बड़े। मुझे तो सबसे ज्यादा वैसे खुशी जो है ना वो ईदी मिलने पे होती थी। हाँ, वही ना, जिंदगी ऐसे जुड़ी होती थी। आप एक छोटी सी चीज होती है वो ईदी जो मिलनी है, लेकिन उससे खुशी कितनी होते थे ना जो उसमें लगे। लेकिन छोटी ईद का इंतजार इसलिए होता था कि ईदी मिलेगी। इधर किसी ने 5 रुपए 10 रुपए दिए नहीं, और इसके बाद नौशाद साहब जो है वो भागे चौक की तरफ जहाँ पे कतलम्मा जो है ना वो लेना है, क्योंकि कतलम्मा
सिर्फ मेलों के दिनों में हमें मिलता था और ईद पे तो मैं तो दौड़ के जो है ना वो कतलमा खाने के लिए पहुंच जाता अच्छा, था। मुझे वैसे बड़ी ईद का खास पकवान क्या है जो इंतजार रहता है कि बड़ी ईद पे ये वाला खाना घर में बनना है या किसी रिश्तेदार की तरफ दावत हो? देखें वो तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है क्योंकि मैंने वो फाका किया होता है वो जी, सुबह का कलेजी वो फिकरा जब बनेगा तो वो बनेगा मेरे लिए तो वो एक लजीज होता है क्योंकि उसी के साथ मैं अपना नाश्ता और लंच जो है ना वो ब्रंच टाइप चीज़ कर लेता हूँ। सही। लेकिन एक्चुअली मैं जो कि वो गोश्तखोर आदमी हूँ तो मेरे लिए तो आप गोश्त की जितनी भी डिशेस बनाते चले जाएंगे वो कम ही रहेंगी। और मेरी बेगम से मेरी वो नमकीन गोश्त जो होता है ना जो चर्बी में बना वो बहुत अच्छा बनाती है मेरे लिए, स्पेशल बनाती है। अच्छा, तो मैं वो बड़े शौक से नौशाद साहब एक क्या हो गया राना साहब कि वो जो जब हम छोटे थे तो जिस गली मोहल्ले में बाजार में मिठाई की दुकानें होती थी उसका एक डिजाइन स्टाइल अलग होता था। ईद वाले दिन लगे इस तरह से लगते थे ऐसे, हाँ जी। हैं? अब मिठाई चली गई शोकेस में बंद हो गई। तो उसमें बड़ा फर्क आ गया है। उस वक्त देखिए ना जब छोटे बच्चे जो होते थे ना वो अगर लड़कियां हैं तो उन्होंने जैसे आज आपने कपड़े पहने हुए ऐसे ही उन्होंने पहने होते थे तो वो हाथ में अपने अपने पर्स पकड़ के तो वो निकली हैं, लड़के भी निकले। और थोड़े पैसे जो हैं उनमें भी आपके लिए काफी कुछ मिल जाता था। और ये जो स्वीट वगैरह का जो तस्वर है ना ये हकीकत है कि ये सवैयाँ जो हैं वो सवैयों वाली ईद थी और ये गोश्त वाली ईद। वो सवैयाँ जो हैं ये हर वक्त नहीं होता था कि हर रोज ही आपको स्वीट डिश मिलती है। अब तो बच्चों को स्वीट डिश की उतनी कोई फर्क ही नहीं रह गया, हर वक्त ही सारा ये बहुत सारे आपके लवाजमात। देखिए एक जमाना था मुझे तो याद पड़ता है हमने जितना बचपन गुजारा घर में एक ही जो है ना वो कोई भी एक चीज जो बन रही होती थी वो एक हांडी पकती होती थी। ये नहीं था कि 3-3 4-4 हांडियां बने। अब लोगों के घरों में हाँ अब आप देखें आम घरों में भी 3-3 4-4 पकवान बन रहे होते हैं। हालांकि मैंने तो बचपन जितना गुजारा वो चाहे आप वो गोश्त को आलू में डालें या आलू को गोश्त में डालें वो आलू गोश्त ही बनना है और वो बन जाता था। भिंडी बननी है तो भिंडी डाल जाए या ज़्यादा अगर कुछ ज़्यादा थोड़ा सा मतवसत से ज़रा ऊपर या बेहतर थोड़ा सा कमा वो जरा भिंडी में गोश्त डाल लेते। लेकिन ये नहीं होता था कि भिंडी गोश्त भी बना है, आलू शोरबा भी बना है, चिकन भी रोस्ट हुआ है। आपके जो दस्तरखान की वुसअत उस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज देखने में आती है। आपको याद होगा राना साहब हम बचपन में भी अगर जाते थे ये ईद की जो होते त्योहारों की फुप्पो के घर या उनके खाला की तरफ या दूसरे उनके वहाँ भी कोई इस तादाद में खाने नहीं बनते थे। इतने अनवाओ इकसाम के खाने की वो नहीं होती, एक या दो मैक्सिमम। जब वन डिश के साथ अब मैक्सिमम अगर ईद त्योहार है तो आपके दो मतलब बिरयानी बन गई, पुलाव बन गया, साथ कोई सालन बन गया, इस तरह करके। अब तो आप देखिए कि 8-8 10-10 किस्म की दस्तरखान बिछता है या वो होता है सजता है। तो एक्चुअली ये हमारे मिजाजन भी जो लेकिन ये शायद ना मेरा ख्याल है राना साहब लाइफस्टाइल चेंज हो गया बहुत सारा हैं। ये देखें ना ये इसने मोबाइल ने लैपटॉप ने बच्चों को अपने अपने कमरों में बंद कर दिया है। वो उसमें शायद बिजी ज्यादा रहना। अच्छा सर उसमें ना माओ का भी बहुत बड़ा कसूर है। जो बच्चा काबू नहीं आता उसे लगा के और कहते हैं कि चलो ये अब बैठ जाए इधर ही, ठीक है ना, और वो उसके बाद अपनी उनकी जान वो छूट जाती है कि जी हमारी जान छूट गई अब ये जो मर्जी करे। दूसरी चीज़ ये है कि पहले दौर में हमारे दौर में गुर्बत थी, बहुत बेबरकती नहीं थी। हाँ अब बेबरकती बढ़ी है, लोगों के पास पैसा है, पैसे में बरकत नहीं है। बच्चे अब कहने लगा ना क्या नाम है दादा अपने पोते से कि यार तुम 10,000 लेके जाते हो तो इतनी सी चीज लेके आते हो, हम तो 5 रुपए लेके जाते तो इतनी चीज लाते थे। हाँ, ये तो उसने कहा ये तब्दील हुई सर, ये सुन लेना। तो उसने कहा कि हम जो 5 रुपए लेके जाते थे इतनी चीज लाते थे। तो उन्होंने कहा दादा अब दुकानों पे ना टीवी कैमरे लग गए, अब आप नहीं ला सकते ठीक है ना। तो बात ये है कि बेबरकती की हो गई इंतहा। और हमने मतलब हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमने अपने बच्चों को ना सब्र शुक्र सिखाया नहीं। हमें याद है मेरे वालिद साहब 2 किलो 3 किलो देसी आम लाते थे, बाल्टी में डालते थे और बर्फ डाल देते थे और हम सामने बैठ जाते थे कि अब हमें आम मिलने। वो फिर 2-2 आम उसको ऐसे से करके हमें देते थे और हम वो खाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम दुनिया की बहुत बड़ी नेमत खा रहे हैं। वो उस दिन ईद है आपके लिए तो मैंगो पार्टी जो है वो इस तरह की पार्टी वो ईद होती थी। आज चौंसा दुसहरी लंगड़ा फला ढींग
वो टेबल पे भरी होती है, बच्चे वो खराब होते हैं और बच्चे नहीं बच्चे कहते हैं हमने नहीं खाया। उसकी बात ये कि जब चीजें आपकी औकात से बढ़ के मिल जाती है ना, फिर उनकी कदर खत्म हो जाती है। ये जो एलिमेंट है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शौकत, हमारे साथ अजब हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना गुजर गया। हम जो थे ना, हमें वो चीजें उस कसरत से दस्तयाब ही नहीं थी। हम वेट करते थे, हम उसकी ख्वाहिश रखते थे, वो कभी कभार पूरी होती। अच्छा, वैसे इसकी अब जरा मामला कुछ और है। इसका दूसरा पहलू भी ले लेना। इसका दूसरा पहलू ये, उस वक्त प्रोडक्शन कब थी, अब 2-3 चीजें तब्दील हो गई ना। पोल्ट्री आ गई, बहुत ज्यादा उस वक्त होती नहीं थी। आपको, हमें पता है कि ये मुर्गी का गोश्त जो था, ये घर में पाली हुई एक लग्जरी एक होता था कि जब कोई खास मेहमान आएगा उस दिन वो मुर्गी ये अब शुरू ज़िबा होती थी। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें जो है ना सहूलत के तौर पर भी दी है। ये सहूलतें जो हैं, ये फरावानी जो है, ये आई है। उस वक्त भी थी, चीजें कम थी, अब ज्यादा आ गई है। इसमें सिर्फ जो चीज़ मुझे जिस पे एतराज़ है, जो अच्छी नहीं लगती, जिसका आपने भी जिक्र किया, मैं भी उसमें ही समझता हूँ, वो ये है कि आप जब दूसरे का हक खाते हैं। कुर्बानी का गोश्त की जब हम शुरू में बात कर रहे थे ना, मैं समझता हूँ कि अगर आपने कुर्बानी भी की, आपने ये फ्रीज़ा समझ के मजहबी फ्रीज़ा पूरा किया, अब आपने जब वो गोश्त रख लिया ना अपनी फ्रिज में, तो आपने गरीबों का हक भी खा लिया। आपने उस दिन नेकी का काम नहीं किया, आप उल्टा गुनाह भी जो है ना, हाँ जी, वो अपने जेब में डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक्चुअली यही पर्सपेक्टिव जो है ना समझने की, हम बहुत सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ऐसे भेड़ चाल के अंदर कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तरबियत में ये चीज, ये डिफरेंस बनाया गया, और हमने भी कोशिश, मैंने तो कम से कम कोशिश की कि ये सारी चीजें कन्वे की जाएं, हर सूरत कन्वे करें, चाहे अच्छी लगे बुरी लगे, कन्वे जरूर की जाए। और देखते हैं कि वो उसके नताइज क्या होते हैं। चांद रात को मैंने सर गुफ्तगू सुनी, मैं आपसे शेख, वो हमारा बकरे के साथ ये सामने वालों की बकरी है, तो बकरी ने उसे कहा आई लव यू, तो बकरे ने कहा उनकी फायदा सवेरे थे मैं ज़िबा हो जाना ऐसे करके जो उन्हें क्या सी उन्हें क्या, चलो खुश खुश ज़िबा हो जाए, फायदा वाकई तो नहीं कर रहे। उन पे तो कहीं पर्चा तो नहीं। आप देखें, लोग वो जो है ना, वो उड़ती चिड़िया के पार गिनते थे, ये जानवर बोल रहे होते हैं, ये उनको भी सुन रहे होते हैं। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइए, आपको एक मौका दिया जा रहा है, आप अपने माजी में जाएं, कोई एक चीज आपने तब्दील करनी, क्या तब्दील करना चाहते हैं? कोई एक मेमोरी जिसे आप निकाल देना चाहते हैं, एक मौका है आपके पास, कुछ बदल लें। मेरी अम्मी ना मुझे जो पजामा पहनाती थी ना, वो लकीरों वाला होता था, पूरे मोहल्ला वाले मुझे जुगते मारते थे। मैं वो पजामा बदलना चाहता आप क्या बदलना चाहेंगे सर? नहीं, लाइफ जो है ना, मेरा तो ख्याल है तसलसल का नाम है। कुछ चीज़ें आपको बचपन में अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें लड़कपन में अच्छी लगती हैं, कुछ फिर आप मेजॉरिटी की एज में जाते हैं तो अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ हैं। बहुत सी चीज़ें आपकी महरूमियों में होती हैं, बहुत सी चीज़ों में आपको अल्लाह ताला ने वो कुछ दिया होता है। तो अब मेरे ज़हन में फौरी ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही जिसमें मैं रिग्रेट फील करूं, कि मैं ये महसूस करूं कि अच्छा भी ये बहुत बड़ा कोई एक मामला था। कुछ जो कॉमन बातें हैं हमारी, हम सबकी जो है, वो कॉमन बात ये है, जैसे राना साहब ने अभी बात की, कि हम जब बात ये करते हैं कि हालात की ख़राबी की, जब हम बात करते हैं कि लोगों को कम खाने के लिए मिलता था, वो एक अमूमी बात है, वो पूरे मुआशरे के लिए बात है। आज भी हम अगर बदलना चाहेंगे किसी चीज़ को, तो इस चीज़ को मैं बदलना चाहूँगा कि वो जो महरूमी वाला तबका जो है, वो अगर आज भी वैसे ही है, तो इसको बदलना चाहिए। अच्छा नौशाद साहब, सहाफ़ी आप ना होते तो क्या होते, ये बताएं जरा। सहाफ़ी ना होते तो ये इंसान होते। ऐसी बात ना करें, अब सब एक ही कम्युनिटी के लोग बैठे। मैं बेसिकली जर्नलिज्म की तरफ आया, जो उस वक्त मैं सेल्स और मार्केटिंग का काम करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वहाँ काम किया, तो वहाँ पर भी जो मेरे पीयर्स थे, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुकाम बड़ा नुमाया था। वहाँ पर भी मैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके, मैं और राना साहब, हमारे अंदर ये फरूकी साहब भी हैं, हम लोग मजदूर हैं बेसिकली, बाय नेचर मजदूर हैं। हमने जब हम काम करते हैं ना, तो हम फिर ये जो नखरे वखरे हमसे नहीं होते, फिर हम काम करते हैं। तो काम वहाँ भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी अल्लाह ने मुकाम दिया, इज्जत दी। आज भी जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि बहुत कम अरसे में बड़ा उस जगह पे भी बड़ा नाम था। अल्लाह ने यहाँ भी मुकाम दिया, जो दिया वो भी मेरी इस्तात और हैसियत से बढ़कर ही दिया। तो रिग्रेट वाली आप बात कर रही थी, यकीन करें कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि उसके अंदर रिग्रेट नहीं होता। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हम जिसे रिग्रेट कहते हैं ना, एक्चुअली वो एक पहलू है, प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस पहलू है। हाँ।
وہ جو محرومی ہے نا وہ آپ کے اندر وہ ڈرائیو پیدا کرتی ہے جو آپ بہت ساری دیگر چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر رانا صاحب کا جو لائنوں والا پجامہ ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو ان کے اندر اتنی ڈرائیو نہ ہوتی, پھر یہ پلین کلوتھس کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل کرنے اپنے آپ کو کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ نہ کرتے. تو جو بھی آپ کے ارد گرد چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو, میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہترین دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں. بے شک بے شک. ہم اس کو خراب کریں تو الگ بات ہے, وہ ہم اس کو استعمال نہ کر سکے الگ بات ہے, ہم اس کی حیثیت اہمیت یا اس کو سمجھ نہ پائیں اپنی کم عقلی کے اندر وہ اور بات ہے, لیکن جو ہمیں دیا گیا وہ ہمارے لیے بہترین تھا. صحیح. ہم اس کو کیسے لے کے آتے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خوشی جو ہے, ہاں خوشی اب ہماری جو نسل بچوں کی اب آئی ہے ان کے لیے خوشی کیا ہے, ان کے لیے مہنگے کپڑے, برانڈڈ کپڑے, برانڈڈ گاڑیاں, اعلیٰ ترین کھانا, بڑی ہوٹلنگ, ٹھیک ہے نا. جب میں کبھی کوئی بات ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں نا, تو ہم نے اپنی خوشیاں محدود رکھی تھی, ہم چھوٹی چیزوں میں زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے. چوائس ہی نہیں تھی رانا صاحب, ہمارے ارد وہی تھا. ہم بڑی خوشی کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آف روڈ کیا ہوتا ہے یا بڑی ساری گاڑی کیا ہوتی ہے, اس طرح کے مسائل نہیں تھے. یا پھر آپ کو جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اتنی فرسٹریشن نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھا, ٹینشن نہیں تھی, سکون تھا. اب جتنی زیادہ چیزیں ہیں, خوشی کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا. سٹریس ٹینشن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ سٹریس ٹینشن پیدا ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن سے, جو ہم میں اور اللہ کے برگزیدہ جو بزرگ ہیں ان میں, بزرگوں میں فرق کیا تھا؟ توقعات کا, ٹھیک ہے نا. جن کی توقعات کم ہوتی ہیں ان کی مایوسیاں بھی کم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جن کی توقعات بڑی ہوتی ہیں ان کی مایوسیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. ہم جو لوگ تھے ہم بہت تھوڑی توقعات سے زندگی گزارتے تھے. یہ بالکل صحیح بات. آج کی نسل کی توقعات بڑی. ہاں, جب میں اخبار بیچتا تھا بسوں میں نے 10 سال بسوں میں اخبار بیچے ہیں آواز لگا کے. میں نے برف کے گولے بیچے ہیں, میں نے پکوڑے بیچے ہیں سڑکوں پہ, سموسے بیچے ہیں میں نے سڑکوں کے اوپر, میں نے اینٹیں اٹھائی ہیں, میں نے مکان بنائے ہیں. جس کی وجہ سے ہر بات آپ کہہ رہی تھی نا اس وقت کہ یہ اس طرف کیوں جاتی ہے, بیسک یہ وجہ ہے. تو کیونکہ ان کو پتا ہے ان کا درد کیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ درد سہے. ایک لائف سے ایک بندے نے نوشاد صاحب, میں نا ایک آفس میں چپڑاسی تھا, ان کا کوئی اجلاس ہوا, گڈس ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن میں, اس میں چپڑاسی تھا. چھوٹے ہاف سیٹ لے کے آدھی ڈبی گولی دی لے کے, یہ میرا کام تھا. تو انہوں نے ایک پریس ریلیز بنائی اور وہ پریس ریلیز بنا کے تو اجلاس کی انہوں نے کہا کہ یہ سب اخبارات میں دینی ہے. میں جنگ گیا تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ریسیپشن پہ دینی ہوتی ہے. تو میں سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ریسیپشنسٹ نے مجھے بلایا, کدھر چلنا ہے؟ میں کہا یہ خبر تھے. انہوں نے کہا ایتھے دے دے. میں نے کہا یہ وہ تو اوپر نہیں دینی. انہوں نے کہا ایتھے دے جا, بس ایتھے دیتی بس جا, چلا گیا. ہم اسی جنگ گروپ کا ایڈیٹر بن کے گئے, اسی ریسیپشنسٹ نے میرے لیے دروازہ کھولا, اسی ریسیپشنسٹ نے مجھے کہا کہ سر آپ اس والی لفٹ سے اوپر جائیں. بات یہ کہ ہمارے ایکسپیکٹیشن کم تھی لیکن ہمارے اندر جد و جہد کی خواہش بہت زیادہ تھی, محنت بہت. ہمیں کسی نے بنا کے نہیں دیا کچھ بھی, ہمارا کوئی گاڈ فادر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم سیلف میڈ بھی نہیں ہیں, ہم اللہ میڈ ہیں, اس نے رستے بنائے ہمارے. اللہ تعالیٰ کی کرم, دیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہم سیلف میڈ بھی نہیں ہیں. یہ تو کلیم بڑا مشکل ہے. نوشاد صاحب ایک اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, دو گام چلوں منزل کے لیے اور سامنے منزل آ جائے, ٹھیک ہے نا. یہ رانا صاحب جو بات کرتے ہیں, میں ایک دوست کی سمپل ایک 2 فکروں میں صرف بتا دوں. رانا صاحب اس نے, وہ وکیل تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ میرا بچپن ایسے گزرا کہ سردی میں ماں بوری کے اندر لپیٹ دیا کرتی, اور وہ اب کیا ہے, اس کے بعد کیا ہوا, وہ جسٹس بنے. ایسے ہی ہے. تو انسان کو زندگی میں وہ ساری مراحل جو ہے اس میں سے گزرتا ہے. باقی پھر میں ایک بات یہ کہوں کہ جو زمانہ ہے نا, اس زمانے کے مطابق بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. آج سے 50 سال پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ پہلا دور اچھا تھا, اس سے پہلے 50 سال پہلے لوگ کہتے تھے پہلا دور اچھا تھا. دور ایک جو ہے نا, دور ہر ایک اچھا ہی ہوتا ہے, اس میں کبھی کبھی انسان فیس کرتا ہے, مشکلات کو فیس کرتا ہے, پرابلمز آتے ہیں, لیکن اچھی بات تو یہ ہے جس طرح آپ نے بتایا کامیابی کے ساتھ ایک سفر گزرا ہے نا, تو سبھی نے مشکلات بھی دیکھی ہیں, ہم سب نے مشکلات دیکھی. کون ہے جس نے مشکلات نہیں دیکھی؟ میں ابھی بھی میرے والٹ میں نا اور اس میں سے آگے ایک تصویر ہے میری بیگم کی,
मुझे कोई चैलेंज, कोई मुश्किल आती है, मैं उस तस्वीर को देखता हूँ, अगर मैं इसको संभाल सकता तो फिर मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको फेस कर सकता हूँ तो ये मुश्किल के लिए नहीं, ये तस्वीर किसकी है? ठीक है ना, बेगम की। ये फिर वो लतीफ़ा तो उन्होंने सुनाना था, लेकिन मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए, तो वो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो वो सारे खुशू खुशू के साथ कुछ जब जो कुछ कर रहे थे वो रो भी रहे थे। तो किसी ने पूछा कि जनाब आप किसके मुरीद हैं? उनका जी असी रन मुरीद है। नहीं जी, अब वो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही सहाराना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम अब मेरे पास खत्म हो चुका है। खालिद फारूकी साहब आपका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। जो सबसे बड़ा मैसेज है इस सारी गुफ्तगू में, फारूकी साहब भी कह रहे थे, हर दौर में रहने वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि पिछला दौर बहुत अच्छा था, या हमारा दौर जो है वो बहुत अच्छा था, आने वाले भी इसी तरह के उसके ऊपर रहेंगे। लेकिन कुछ रिवायात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमें कायम रखना है, और उसमें से एक रिवायत ये भी है कि जो हमारी ईद कुर्बा है, इसके मकसद को समझा जाए और इसके मकसद के मुताबिक जो है अपने आने वाली नस्लों को कम से कम वो मैसेज कन्वे भी किया जाए और उन्हें उस चीज़ का आदी बनाया जाए, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है, हम जो फरीज़ा है हमारा आगे बढ़ाने का अपनी आने वाली नस्लों को, इस सारे मामले को, वो पूरा होता रहे। सिद्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके दम से, जो और मुझे आपसे एंटरटेनिंग बहुत एस्पेक्ट कुछ भी सीखने है को मिला। और ये जो गुफ्तगू का तसलसल है, वरना हम तो अगर तीनों बैठे होते तो मामला काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता था ईद के दिन के पर्सपेक्टिव के अंदर। नाज़रीन, इंशाल्लाह आइंदा जो त्यौहार हैं, ईदें हैं, उन पर आपसे मुलाकात रहेगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।